Hi, lovely viewers. How are you all? I hope that you all are hale and hearty. And I'm Bir Kiran, and I'm once again back to this channel. The channel name is Rupinder Kaur, the English teacher. And you must be wondering today कि IELTS IELTS मतलब ये तो एजुकेशनल चैनल है, इस पे तो हम स्कूल के चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं. तो व्हाट अबाउट IELTS? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IELTS हियर? So guys, actually I have taken the IELTS examination amid the pandemic, and I have faced one thing that during these days people are actually students or people are not able to personally visit the coaching classes because the situation is getting worse these days. So I thought why not to help you people out in this, and if I can help any person in your IELTS journey, then it would be perfect for me, and my purpose would be satisfied actually. So दैट्स वाई मैं आपको आइल्स के बारे में बताऊंगी एंड आइल्स के मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी एंड हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन अ स्मार्ट मैनर एंड कैन फेच मोर एंड मोर बैंड स्कोर. ऑल दिस विल बी कवर्ड इन माई अपकमिंग वीडियोज़. सो अगर आपको लगता है कि आई कैन हेल्प एनी वन आउट देयर in their IELTS journey, so please like this video and share this video with other people so that they can get most of the benefit out of this video. So guys, without further ado, let's get started with the video. Behind closed doors, I'm a fool for your love. सबसे पहले गाइस, IELTS IELTS the full form is international English language testing system. So it is purely the language testing system. Means in this your level of English, and a level of English is test how much you are aware about the aspects of English and how is your level of English. ठीक है. सो बेसिकली बैंड स्कोर इज़ गिवन अकॉर्डिंगली, एंड बहुत ही स्मार्टली स्ट्रक्चर है ये बनाया गया आइल्स का, जिसमें वो आपके हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं इन द सेंस कि हाउ यू स्पीक, हाउ यू कैन राइट इन इंग्लिश, हाउ यू कैन what is your level of thinking that you can attempt comprehensions, and then listening. आप कितना उनके एक्सेंट को सुनते हो और कितना ऑब्जर्व करके कितना समझ के एनालाइज करते हो. तो बहुत स्मार्ट वे में ये बनाया गया है आइल्स टेस्ट. और ये गाइस एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है विच इज़ एक्सेप्टेड फॉर स्टडिंग अब्रॉड or for moving abroad for the immigration purposes, and it is basically accepted in countries like Australia, UK, USA, and the most popular is Canada. ठीक है. So guys, as you all know, if you don't know, I would definitely help you all. I think ये वीडियो कईयों को पता होगी जो IELTS अटैम्प्ट कर रहे हैं. जिसको नहीं पता है, देखने में कुछ नहीं जाता गाइस, देख लो, because it is going to be very helpful for you all, because I have covered all the aspects in this video and it is going to clear your doubts regarding the introduction to the IELTS. Okay guys, so first of all, there are 0 to 9 band score, and the maximum score you can get is 9 band score. Okay? So basically all the trainers get such type of band score, and after that guys, mostly 6.5, 5.5 or 6 overall, like these are accepted and you can check accordingly कि आपका कौन सा है. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे IELTS जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में. ठीक है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एकेडमिक IELTS एंड जनरल IELTS. Academic IELTS, as the name suggests, is purely for the study purpose. If any student after his plus 2, after their graduation, after their post graduation, or any time if they want to study in overseas, then they can attempt for the academic IELTS. Okay. And the second category is general, which is for immigration purpose or for the working purpose. If you want to work abroad, if you want to migrate to the other city, if you want to get permanent residency over there, then people of such kind attempt the general IELTS. ठीक है. अब जो एकेडमिक है, एकेडमिक IELTS, because I was a student and I have already given the academic test, so I can tell you it in a brief what it is all about. So it is divided into 4 categories, 4 modules we can say that is reading, listening, writing and speaking. तो जो पहले 3 है ना, listening, reading and writing, it is also known as LRW.
So LRW test is held as per the date which you choose for your examination, and the speaking test is taken separately. It can be on the date of LRW, it can be before or after that. पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, उस दिन भी हो सकता है, वेन्यू अलग भी हो सकता है, वेन्यू सेम भी हो सकता है. वेन्यू मीन्स जहाँ पे आपको, जिस होटल में जाके एक्चुअल में आपको अटेम्प्ट करना है, अपेयर होना है इस टेस्ट के लिए. ठीक है. सो लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग. ठीक है. तो इसमें आपको सिर्फ लिसन करना है. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू एनालाइज. यू हैव टू एनालाइज देयर कॉन्वर्सेशन. वो क्या बोल रहे हैं. ठीक है. वो कॉन्वर्सेशन हो सकती है, वो कोई स्पीच हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो उनके एक्सेंट में होता है. आपको सुनना है कि वो एक्चुअल में वो बोल क्या रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स देने हैं. गाइस इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, हाउ टू अटेम्प्ट दिस मॉड्यूल, व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन वाइल अपेयरिंग फॉर दिस मॉड्यूल. ठीक है. सो 30 मिनट्स मिलेंगे या 40 मिनट्स का होता है, एंड 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर टू द मेन आंसर शीट. ठीक है. सो 4 सेक्शंस इसमें गाइस होते हैं. पहला सेक्शन आपका मोस्टली कॉन्वर्सेशन का ही होता है, एंड लास्ट में मोस्टली आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ही आते हैं, एंड बीच के 2 सेक्शंस है दैट मे वेरी. ओके. सो यू जस्ट हैव टू लिसन. लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसलिए हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ना, वी आर नॉट अकस्टम टू द एक्सेंट ऑफ ब्रिटिशर्स और फॉरनर्स. जो तो है इट विल बी रियली, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर दैट दोज पीपल. बट जिनको नहीं इतना आता है तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है. बट विद frequent practice you can easily crack this module, right? Then is reading. अब रीडिंग लास्ट फॉर 60 मिनट्स. रीडिंग 60 मिनट्स की होती है. इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम इज अलॉटेड टू यू पीपल फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर. इट मीन्स दैट आपको साथ साथ में आंसर लिखने हैं. गाइज रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग में यू विल बी गिवन 3 पैसेजेस, 3 पैसेजेस होंगे, और हर पैसेज मोस्टली 2 पेज का होता है. ठीक है. 2 पेजेस का होता है. एंड गाइज जैसे हम +2 में करते थे कॉन्वर्सेशन बोल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. कॉम्प्रीहेंशन होता था, एंड कॉम्प्रीहेंशन हम देखते थे, कॉम्प्रीहेंशन हम करते थे सॉल्व, उसके आंसर्स निकालते थे. बट गाइज माइंड माई वर्ड्स, इट इज़ नॉट दैट ईजी. ठीक है. इफ़ यू हैव अ गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, आपको बहुत अच्छा आता है, आपको समझ आता है, ठीक है, तो आप ये इजीली अपना कर सकते हो. एंड स्टूडेंट्स एक्चुअल में 8.59 भी लेके जाते हैं रीडिंग में. ठीक है. सो रीडिंग में आपको, रीडिंग इज़ ऑल अबाउट, रीडिंग टफ नहीं होती, लेकिन द टाइम प्रेशर, बिकॉज 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं. ठीक है. हर एक पैसेज में 14 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लगा लो हिसाब, 13 क्वेश्चंस के हिसाब से 40 बन जाते हैं तीनों पैसेजेस के. आपको साथ में ट्रांसफ़र करना है, आपको उस टाइम पे कंसंट्रेशन पूरी लगानी है 60 मिनट्स के लिए, एंड टाइम बहुत फास्ट भागता है उस टाइम पे. तो दिस इज़ ऑल व्हाट मेक्स रीडिंग बिट डिफ़िकल्ट. लेकिन अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे, स्मार्टली आप इस वाले मॉड्यूल को भी ईजिली क्लियर कर जाओगे. ठीक है. देन गाइज आपको आता है राइटिंग मॉड्यूल. राइटिंग मॉड्यूल भी देखो नाम से ही पता लग रहा है, यू हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू राइट, यू हैव टू शो योर लेवल ऑफ इंग्लिश टू देम, कि आप कितना स्मार्टली लिख सकते हो. बट गाइस इट इज़ नॉट लाइक जब हम स्कूल टाइम में ऐसे लिख देते थे. इसमें एक स्मार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है. प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट इन दैट मैनर ओनली. ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, गाइस सब कुछ बताऊँगी, लेकिन ये सारा कुछ अगली वीडियोज़ में हम करेंगे. ठीक है. सो इसमें आपको 2 टास्क मिलते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. Task 2 is generally you are asked to do it in a 20 minutes. You are not time bound कि आपको 20 मिनट्स में ही करना है, लेकिन you are advised to do so because ये जो होता है वो छोटा होता है, 150 वर्ड्स का लिखना होता है आपको टास्क. एंड देन इज़ दूसरा वाला 250 वर्ड्स का. टास्क 1 होता है कोई भी रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको हो सकता है बार ग्राफ आ जाए, पाई चार्ट आ जाए, प्रोसेस डायग्राम आ जाए, कुछ भी आ जाए. तो एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू इन फ्रंट ऑफ योर शीट्स. आपको सिर्फ देखना है, आपको एनालाइज करना है कि क्या है, और फिर आपको राइट करना है 150 वर्ड्स में. एंड गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपनी तरफ से नहीं बनता, इसके लिए एक वो कैब होती है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है गाइस. उसके बाद टास्क 2 आता है. टास्क 2 में क्या होता है? टास्क 2 इज सिंपली ऐसे राइटिंग. तो आपको इसमें भी ऐसे लिखना होता है. जनरल टॉपिक्स होते हैं गाइस, बहुत जनरल, जिसमें आपकी थिंकिंग पावर आपको बस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है. आपको अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं ना, अपने व्यू पॉइंट्स को जस्टिफाई करने हैं.
कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो क्यों नहीं सोच रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है। तो गाइस ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बोथ व्यूज़ हो सकते हैं, योर ओपिनियन, एग्री डिसएग्री। तो जिनको तो पता है उनके लिए बहुत ईजी है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए इट्स माई ऑब्लिगेशन टू हेल्प देम आउट। ठीक है गाइस। उसके बाद आपका 60 मिनट्स का होता है, आप ये वाला टास्क, ये वाला मॉड्यूल भी। देन आपका आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट it may be on your the test of LRW, it may be before or after that. Okay, speaking में guys क्या होता है, they just check your level of speaking, how do you speak, how smartly you can frame your answers. It's a one-to-one conversation. ठीक है, so examiner will keep on asking you questions and your duty is to just answer them, answer all the questions and satisfy the examiner at that time. इट मे बी फॉर 15 to 20 minutes, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लेवल। अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गाइस क्या होता है, हाउ स्मार्टली यू फ्रेम योर आंसर, वॉट इज़ योर रेंज ऑफ वोकैबुलरी, हाउ कैन यू नो वॉट इज़ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैट अकॉर्डिंगली। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस इज़ द की टू क्रैक स्पीकिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि अकेला कॉन्फिडेंस ही, बट कॉन्फिडेंस इज़ की एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें गाइस क्या होता है, क्यू कार्ड मिलता है आपको। मैं पहले बता दूँ स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस सच एज इतने ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस आपके रिलेटेड, आप हु आर यू, ठीक है, आर यू अ स्टूडेंट और यू आर वर्किंग, वेयर डू यू लिव, अबाउट योर होम टाउन, अबाउट योर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, डू यू लाइक बोटिंग, डू यू लाइक टू विजिट फॉरेन कंट्री, व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट इस ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद गाइस क्यू कार्ड आता है। क्यू कार्ड एज द नेम सजेस्ट, क्यू क्या होता है, कोई हिंट। तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक आ गया कि डिस्क्राइब अ फेवरेट फैमिली मेम्बर इन योर फैमिली। आपका फेवरेट फैमिली मेम्बर कौन है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए हो जाएंगे कि हु इज़ द मेम्बर, हाउ डू यू नो दैट पर्सन, व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्सन। तो इसके ऊपर देखो कितना जनरल है ना। तो कई बार ऐसा नहीं होता, जनरल नहीं आता मोस्टली, कई बार कुछ और भी आ सकता है। तो आपको यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग ऑल सच क्यू कार्ड्स। तो इसमें आपको 1 मिनट मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए पहले, एंड फिर 2 मिनट पूरे मिलेंगे आपको मैक्सिमम। इट कैन लास्ट फॉर मैक्सिमम 2 minutes। यू हैव टू स्पीक एट अ स्ट्रेच फॉर 2 minutes, और आप 1 minute के बाद मतलब 1 minute तो आपको एसेंशियली कंप्लीट करना ही करना है। एग्जामिनर कैन इंटरप्ट यू इन बिटवीन एज वेल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये बना देना है, फिर अपना आपने बोल देना है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को एनकाउंटर करोगे। उसके बाद आपका लास्ट में जो आता है दैट इज़ फॉलोअप्स, एंड फॉलोअप्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू द क्यू कार्ड ओनली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फैमिली की बात की ना, तो फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि हु इज़ द लीडिंग मेंबर इन योर फैमिली, व्हाट आर द फैमिली वैल्यूज़ इन इंडिया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन 4-5 होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ कॉन्वर्सेशन को बढ़ा भी सकता है, आपको आउट ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप वहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते, यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक आइल्स। जनरल आइल्स की एक वीडियो बना दूँगी इफ़ यू वांट। ओके, एंड गाइस आप हेल्प करो दूसरों को हु वांट टू अपेयर फॉर देयर आइल्स। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा ह्यूमैनिटी को एक्चुअली हेल्प होगा। ठीक है गाइस, बिकॉज मैं यहाँ पे अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ, एंड आई वुड लव टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स टू हेल्प यू ऑल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, सो दैट मेरे को पता लगे कि ओके व्हाट आर योर फीडबैक्स, एंड क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। एक्चुअली मैं कंटिन्यू तो करूँगी ही इसको, बट आई वुड लव कि अगर आप मेरे को मेरे एफर्ट्स को कमेंट डाउन करोगे, सो दैट मुझे लगा कि हाँ यू आर अप्रिशिएटिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। एंड हम अगली वीडियो अपनी लिसनिंग के ऊपर शुरू करेंगे, बिकॉज लिसनिंग के ऊपर बहुत ही कम वीडियोस हैं। लिसनिंग आई वांट कि लिसनिंग एक पीस ऑफ केक होता है बंदे के लिए, अगर आप कर लो तो ये मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, stay happy and healthy, and be protected in this virus situation. Thank you so much. Bye bye.